Good morning, dear students. How are you all? Top of the word. Very good. Beta, as coronavirus is spreading widely, so you should take each and every precaution of coronavirus. Beta, it is very cold also. You should wear your woolen clothes properly. You must wear your socks. आज बेटा मैं कुछ बच्चों से बात कर रही थी ना जब पीटीएम पर. They were not wearing the socks. You must wear the socks. Okay? Beta, first of all, I will show you the images of some famous Indian mathematicians. You have to recognize them and tell me their names. Beta, this is the first image of our Indian mathematician. He is very famous. इनकी इमेज मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाई थी. बताइए कौन है ये? Identify him and tell me who is he? He is Aryabhat. He is a discoverer of zero. Now, this is the second image of our famous Indian mathematician. Identify him and tell me who is he? ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाए थे. जल्दी जल्दी बताइए कौन है ये? Yes, he is Brahmgupta. He is renowned for introduction of negative numbers and operations on zero into arithmetics. This is the third image of famous Indian mathematician. ये भी आपने देखी हुई है ना? अब बताइए कौन है? जल्दी से बताइए. Who is he? Very good बेटा. He is Srinivas Ramanujan. He made contributions to the analytical theory of numbers. Now today again we will do lesson 10 geometry. So open lesson 10 geometry. In our previous video we did up to exercise 10.3. In today's video we will do exercise 10.4 given on page number 127 and 128. Solve part given on page number 128 and 129 and take a challenge given on page number 129. Beta, this is exercise 10.4 given on page number 127. First of all, we will do first question. Draw line segments of the following lengths. We will draw line segments. यहाँ पर lengths दी हुई हैं, उनके according हम line segments draw करेंगे. Beta, now take out your scales. This is a scale having two sides. On one side, here are centimeters. And on other side, these are inches. We will measure the length of the line segment using this scale from the centimeter side. Okay. Here is the starting point. 0 is the starting point. फिर उसके बाद आप नंबर देख रहे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये नंबर्स कहाँ तक हैं इसमें 15 तक. और बीच में छोटी लाइंस भी देख रहे हैं. These are millimeters. अब बेटा ये 0 से स्टार्ट करते हुए हम छोटी लाइन को क्या बोलेंगे? ये सबसे जो स्टार्टिंग लाइन है ना छोटी वाली, ये है आपकी 0.1 सेंटीमीटर.
उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर, देन 0.3 सेंटीमीटर, देन 0.4 सेंटीमीटर। और अब आप ये देख रहे हैं ना थोड़ी सी लंबी लाइन, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। ये 0 और 1 की मिड पॉइंट है, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। देन 0.6 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर एंड 0.10 सेंटीमीटर को हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और 1 और 2 के बीच में ये 0.5 है ना, मिडवे है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। देन 1.6 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर और 1.10 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, 2 सेंटीमीटर। नाउ बेटा सी द स्केल इन योर बुक। अभी हमने 2 सेंटीमीटर तक किया था ना, अब ये 2 के बाद हम 3 तक करेंगे। अब 2 के बाद ये फर्स्ट लाइन है 2.1 सेंटीमीटर, देन 2.2 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और जो ये है मिड पॉइंट है दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। थोड़ी सी लंबी लाइन है ना। उसके बाद 2.6 सेंटीमीटर, देन 2.7 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर और 2.10 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ बेटा वी विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द गिवन लेंथ्स। बेटा वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ओके, पहले आपको अपना स्केल लेना है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है। ओके, और बिल्कुल टाइटली पकड़ना है। अब यहाँ पर 0 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या लेना है बेटे, 3। 3 इज योर एंडिंग पॉइंट। पहला पॉइंट आपका 0 है, देन 3। अब आप इन 2 डॉट्स को, आपने ये 2 डॉट्स डाल दी ना, एक 0 पर और एक 3 पर, इन 2 डॉट्स को आप ज्वाइन करेंगे। ओके, दिस इज योर 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। Now you will give this line segment a name. Suppose I am giving name as AB. आप बेटे कोई भी नाम दे सकते हैं। Now I will draw line segment of 11 centimeter. अब मुझे बताइए मैंने क्या करना है, पहले मैं स्केल पकड़ूंगी ना ठीक से स्ट्रेट। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, 0 और एंडिंग पॉइंट क्या है, 11। ठीक है, ये 0 और 11 पर मैंने 2 डॉट्स लगा दी। अब मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूंगी ना, इन डॉट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। दिस इज 11 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ आई विल गिव दिस लाइन सेगमेंट अ नेम। सपोज आई एम गिविंग दिस लाइन सेगमेंट अ नेम एज PQ। आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके, इन C पार्ट आई विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। स्केल को आपको सीधा रखना है और ठीक से पकड़ना है। 0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 5। ओके, नाउ यू विल ज्वाइन these dots. This is your 5 centimeter line segment. At last, you will give this line segment a name. Suppose I am giving this line segment a name as XY. Okay, this is XY line segment of 5 centimeter. Now beta, in D part, I will draw line segment of 9 centimeter. पहले मैंने स्केल को सीधा रखा। 0 is the starting point and ending point कहाँ पर आएगा बेटे, 9 पर आएगा ना, और 9 पर हमने सेकेंड डॉट लगाई। अब इन डॉट्स को ज्वाइन किया। This is of 9 centimeter. Now I will give this line segment a name. Suppose I am giving this name DE. Okay. In E part I have to draw line segment of 7 centimeter. तो आप स्केल सीधा रखेंगे। 0 पर स्टार्टिंग पॉइंट है और
7 पर आपका एंडिंग पॉइंट है। ये 2 डॉट्स आपने लगा दी। अब इन डॉट्स को ज्वाइन करना है। 0 से लेकर आप 7 तक ज्वाइन करेंगे। दिस इज ऑफ 7 सेंटीमीटर। At last, what will you do? You will give this line segment a name. Suppose I am giving this line segment a name as AB. In F part, I will draw line segment of 1 centimeter. Okay, 0 आपका starting point होगा और 1 आपका ending point. इन dots को आप join करेंगे और आप बाद में उसके नेम देंगे। Suppose I am giving this line segment a name as XY. This is XY line segment of 1 centimeter. Okay. Now beta you will do G and H parts yourself. Now beta we will do question 2 given on page number 128. Write the length of the following line segments. आपको ये जो लाइन सेगमेंट्स दी हुई है इनकी लेंथ लिखनी है कितनी है। अब बेटा देखिए फर्स्ट स्केल में 0 स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट क्या है 3। तो कितनी सेंटीमीटर की लाइन है ये? दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। सो यू विल राइट हियर 3 सेंटीमीटर। ये बेटे सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप सेंटीमीटर लिखेंगे। नाउ इन बी पार्ट द स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड द एंडिंग पॉइंट इज एट 9. सो दिस लाइन सेगमेंट इज ऑफ 9 सेंटीमीटर. You will write here 9 centimeter. In C part, 0 is the starting point and 1 is the ending point. तो ये कितनी सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है? This is of 1 centimeter. You will write here 1 centimeter. Now beta, this is solve part given on page number 128. We will do first question. Tick the correct answer. आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। अब बेटा ये देखिए, ये आपके पास रे क्यूपी है या लाइन क्यूपी। अब आपको ये रे नजर आ रही है ना, क्योंकि इसका 1 स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरी तरफ से ये एरो बना हुआ है, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं आप। रे में ही ऐसा होता है ना कि 1 स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज रे क्यूपी। आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं ना, तो क्यूपी, पी क्यों नहीं बोलेंगे इसे, क्यूपी। दिस इज रे क्यूपी। सो यू विल टिक ऑन रे क्यूपी. इन बी पार्ट you will see whether it is ray SR or ray RS. आप हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं ना नेम, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है S, और इधर से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप इसे SR बोलेंगे ना, RS तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका S है। सो दिस इज रे SR. You will tick on ray SR. In C part, you will see whether it is ray YZ or line YZ. बेटा क्या आप पहले ये देखिए, ये रे है या लाइन है। अब इसमें दोनों तरफ एरोज है ना, तो जब दोनों तरफ एरोज होते हैं तो वो लाइन होती है ना, रे नहीं होती ना। सो दिस इज लाइन YZ. सो यू विल टिक ऑन लाइन YZ. In D part, you will see whether it is line segment NM और रे NM. अब बेटा ये देखिए, इस लाइन में दोनों तरफ डॉट्स है ना, अगर दोनों तरफ डॉट्स हो तो वो लाइन सेगमेंट होती है ना। सो दिस इज लाइन सेगमेंट NM. सो यू विल टिक ऑन लाइन सेगमेंट NM. Now beta, we will do question 2 given on page number 128. Measure the line segments with a ruler and write the lengths. आपको इन लाइन सेगमेंट्स को स्केल से मेजर करना है और इनकी लेंथ्स आपको यहाँ पर लिखनी है।
अब बेटे आप सेंटीमीटर की साइड लेंगे ना, इंचेस की साइड नहीं लेंगे ना। तो आपने ए पार्ट देखेंगे। आप ए पार्ट में आप स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। और एंडिंग कहाँ पर आएगी इसकी? ये 10 पर खत्म हो रही है ना। सो दिस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू विल राइट हियर 10 centimeter. Now you will measure the line segment of B part. B part की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटे? 0। और एंडिंग पॉइंट देखिए, ये यहाँ फिनिश हो रही है ना। So this is of 5 centimeter. You will write here 5 centimeter is already written here. In C part, starting point is 0 and ending point is 8. So this is of 8 centimeter. You will write here 8. Now beta, this is question 3 given on page number 129. Now beta, this is question 3 given on page number 129. Draw the line segments of the given measurements. आपको लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। ये मेजरमेंट्स दी हुई हैं। मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना पेज 127 पर। तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज करना है। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ओके, नाउ दिस इज टेक अ चैलेंज गिवन ऑन पेज नंबर 129. यू विल डू दिस क्वेश्चन विथ मी। ओके बेटा, this is take a challenge question given on page number 129. These are questions. You have to answer these questions. First question is, I am a set of points. मैं एक set of points हूँ. I have 2 arrows. मेरी 2 arrows हैं and extend on both sides. मैं दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर सकता हूँ. Who am I? मैं कौन हूँ? बेटा ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है. और क्या है? I can extend in both the directions. मेरी 2 arrows है और मैं both directions में एक्सटेंड कर सकता हूँ. तो who am I? मैं कौन हूँ? What is this बेटे? This is a line. Okay. Second question is, I am used to measure length. मैं लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता हूँ. You can find me in a geometry box. आप मुझे कहाँ देख सकते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में देख सकते हैं. Who am मैं कौन हूँ? आप ज्योमेट्री बॉक्स में क्या चीज रखते हैं जिससे आप लेंथ मेजर करते हैं? स्केल. शाबाश. SCALE scale. SCALE scale. Now third question is, I can bend and twist. मैं bend भी हो सकता हूँ और twist भी हो सकता हूँ. I am a dash line. मैं कौन सी लाइन हूँ? ऐसी कौन सी लाइन होती है जो ट्विस्ट भी होती है और बेंड भी होती है? That is curved line. Now tell me spelling of curve. CURVED. Curve. Okay. Are these clear to you? Beta, today's thought is study like there's no tomorrow. Because if you keep putting off your studies for tomorrow, you will probably be too late. This means बेटे, आपको आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. अगर आप आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे उसको करने में. इसलिए बेटा अपना काम टाइम पर करना चाहिए. आज ही पूरा कर लेना चाहिए. ओके.
Thank you, beta. Have a great day.